Okay, good evening, everyone. I am audible. Yeah, good evening. You are Yeah, good audible. evening. You are audible. Good evening. Okay, sir. Thank you very much. So, uh, I'm uh, I'm Rafiq, the director of the Bharat Digital Academy. We will from today we will cover the 1 week national workshop academic books, publishing skills and strategy. है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस के इस वीक में हम लोग क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे ना, उसके बाद वी विल स्टार्ट टूडेज टॉपिक. ओके, तो स्क्रीन विजिबल ना? Yes, स्क्रीन विजिबल और नॉट? Yes, sir, it's visible. ओके सर, ओके. In this screen, you can see there is a 5-day program. The day one, we will learn about the foundation of academic publishing. That means we will learn के what is the publishing, हमें इससे क्या फ़ायदा है, importance of the academic publishing in career advance, type of the academic books, monograph, edited books, textbook or reference book. है ना? After that, we will learn here understanding the publishing ecosystem, traditional versus self-publishing and open access publishing. Or the other is the identifying the publishers and their subject focus, and the last one is the copyright basics and author rights. On the second day, we will cover writing and structuring academic books. है ना? Selecting a topic and define scope, structuring a book, chapters, sections, and follow an academic writing style, clarity, coherence, citations, and references. Preparing book proposals and sample chapters, and after that the tool for the writing like a word, ms word, google doc or ai based writing assistant. Or day 3 we will cover here editing, reviewing and ethical practices. Okay, so the third day we will learn about the importance of the peer review and editing, है ना? The second type of the editing, developmental, copy editing and proofreading. The other one is the academic integrity, clearance detections tool like the Turnitin, AI tools. एक मिनट, someone is open the mic. Kindly off your mic. Actually, your voice is there. So the another one is uh, the day 4 design, production and digital tools. So on day 4, we will learn book design, how to cover, how to create the cover page, layout, font, and formatting guideline. Okay. After that, tool for design, Canva, Adobe, InDesign, Overlay. है ना? After that, we will also learn the ISBN number, what is the DOI number, indexing, and metadata essential. Or after that, ebook creation. है ना? How to we will create the ebook, or how to publishing in the ebook platform like the Amazon Kindle, Google Books, ResearchGate, and Academia etc. Okay, and the final day, day 5, we will learn about the emerging trends, open access, AI assistant publishing hybrid and publishing. ठीक है, marketing and distributions, conferences and social media academic networks. After that, we will learn building an author profile and website on Canva. Okay, or funding and grant for the academic publishing. तो इन दिस वीक हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे वन बाय वन. तो फर्स्ट इज वी विल कवर द डे 1 फाउंडेशन ऑफ द एकेडमिक पब्लिशिंग. दैट मीन वी विल लर्न कि एग्जैक्टली पब्लिशिंग होती क्या है, इसमें टीचर्स को क्या फ़ायदा है, किस किस तरह की पब्लिशिंग होती हैं.
है ना, और हम लोग पब्लिशिंग को बहुत इजीली कैसे एक्सेस कर पाते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आफ्टर दैट फ्रॉम द टुमारो वी विल गो टू द वेरी एडवांस स्टेज, है ना, वहाँ पर के राइटिंग कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए एकेडमिक बुक का, है ना, चैप्टराइजेशन कैसा होना चाहिए, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग फ्रॉम टुमारो, है ना, और किस में हम कौन से ऐसा कौन से टूल्स है जिसके ज़रिए हम लोग काम करेंगे इसमें ना। ये गूगल डॉक्स इज वेरी वेरी पॉपुलर फॉर द बुक एडिटिंग, ठीक है ना, और बुक राइटिंग। और इसमें एम एस वर्ड भी है ना। एक्चुअली एम एस वर्ड और डॉक्यूमेंट सिमिलर है ना, लेकिन अब इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है, गूगल डॉक क्या करता है, गूगल क्या कर रहा है, गूगल एक आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। वो स्पेस कैसा है, क्लाउड में जो भी आप कर रहे हैं ना वो सारी चीज़ें क्या होंगी आपकी क्लाउड में वहाँ पर चली जाती है। लेकिन एम एस वर्ड ऐसा नहीं होता, एम एस वर्ड क्या करता है वो आपके कंप्यूटर, वो उसका डिटेल में हम लोग बाद में सीखेंगे। तो विदाउट एनी डिले we will start the today's sessions. Okay. Okay. The importance of the academic publishing, है ना, the title today's the title of the academic the importance of the academic publishing, why we will uh, use this term, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिशिंग क्या है सबसे, एक्चुअली क्या ना, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल से हियर द बहुत सीनियर लोग भी हैं, बहुत प्रोफेसर्स भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर भी हम लोगों के साथ इस कोर्स के लिए जुड़े हैं। तो आई थिंक एवरी वन नो अबाउट द पब्लिशिंग, के पब्लिशिंग एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन आज हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा सा लोगों को कम पता होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो पब्लिशिंग के बारे में नहीं जानते हैं ना। तो बस इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट में जल्दी जल्दी से हम लोग आज कर देंगे, और एक दो एआई टूल्स है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली नॉलेज डिसमिनेशंस, तो क्या होता है, एकेडमिक पब्लिशिंग फैसिलिटीज द शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। बस सब लोग जानते हैं कि पब्लिशिंग जो कर रहे हैं, जो भी बुक को हम पब्लिश क्या कर रहे हैं, उसका क्या हो, उसका इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि द अदर पीपुल्स रिकॉग्नाइज यू एज ए स्कॉलर, है ना, कि आप मतलब स्कॉलर हैं, आपने एक बुक लिखी है, अपने अपनी अपनी जो थॉट्स हैं, अपनी जो थ्योरीज है, आप थ्योरीज को क्या कर रहे हैं, थ्योरीज थ्योरीज को आप कहाँ पर पहुंचा रहे हैं, आप रिसर्च पे बांट रहे हैं, रीडर्स के पास पहुंचा रहे हैं ना। वो सारी चीज ग्लोबली क्या हो गया, dissemination that the finding globally, promoting collaborations and fostering the culture of the inquiry among the scholars and practitioners, है ना। कोई जब बुक जो किताब आप लिख रहे हैं, वो किताब जब लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक 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 कंटेंट ऑफ टेबल होता है कि मुझे इस टॉपिक पे और ये सारी चीजें लिखना है ना। तो वो चीज क्यों कर रहा है, क्योंकि यू आर शेयरिंग योर नॉलेज, शेयरिंग योर इंफॉर्मेशन के स्कॉलर्स है, रिसर्च स्कॉलर्स है, टीचर्स, तो सबको आप क्या कर रहे हैं, एक किताब लिखकर एक अपनी अपनी जो अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ। और अनदर वन इज द एकेडमिक रिकॉग्निशंस, द पब्लिशिंग रिसर्च इनहेंस द एकेडमिक विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। अब क्या होता है, जब कोई हम कोई किताब लिखते हैं, अगर हम टीचर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर हैं, तो अब हमें इससे क्या फायदा, इससे हमें फायदा ये मिलने वाला है कि जब हम हमारा जब प्रमोशन होता है या हमारा सिलेक्शंस होता है, तो हमें वहां पर क्या होता है, वहां पर हमें एपीआई स्कोर में कुछ नंबर्स मिलते हैं। जैसे कि एक बुक सिंगल ऑथर बुक के लिए 10 एपीआई स्कोर है, और जो एडिटेड बुक के लिए उसके लिए 8 है ना। तो जब हम कोई काम कर रहे हैं, है ना, तो हमें उसका फायदा कैसे मिल रहा है, एक फायदा तो हमें ये मिल रहा है कि जो हम अपनी जो थॉट्स है, अपनी इंफॉर्मेशन से लोगों के लिए शेयर कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या मिल रही है, दूसरी चीज मिल रही है कि हमें एकेडमिक रिकॉग्निशन मिल रहा है कि भाई अभी आपने कितनी किताब लिख ली, आपकी कौन सी किताब है, कौन किताब आपकी कोर्स में चल रही है, कौन किताब आपकी मार्केट में चल रही है, ये सारी चीजें के बारे में हमें क्या हो, हम इसके बारे में हमें हम दूसरे लोगों को और क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ना वहाँ पे विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी हमारी किताब की होती है, लोग हमें पहचानते हैं, लोग हमें जानते हैं। अगर बुक्स अगर नहीं होती तो आज हम इतने भी स्कॉलर्स हैं, कार्ल मार्क्स ले लो, पंडित नेहरू ले लो, गांधी ले लो, कोई भी इतने इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं और ये मतलब सोशल रिफॉर्मर हैं,
उनके बारे में अगर हम जान रहे हैं, वो तो हमारे पास जो सोर्सेज है वो सोर्सेज कहाँ से आया है, वो सोर्सेज बुक के जरिए हमारे पास आया है। तो इसलिए जब कोई कोई बुक लिखता है तो वो बुक सिर्फ उसकी लाइफ का पार्ट नहीं होती है, बल्कि आफ्टर द लाइफ, अगर वो अपनी लाइफ में तो अपनी लाइफ में तो है ही है, इसके अलावा आने वाली जो आपकी जनरेशन है उस जनरेशन को भी बेनिफिट मिलता है, और आपका नाम मार्केट में, आपका नाम सोशल में, समाज में, सोसाइटी में आपका नाम क्या होता है, आपका नाम बहुत ज्यादा फेमस होता है। तो आपको क्या करती है किताब, क्या करती है किताब, एक बुक है, बुक है आपको रिकॉग्निशन दिलाती है, कहाँ पर, सोसाइटी में। ठीक है, तो इसलिए हमें किताब के लिए इतनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। अब अब ये क्या है, अब क्या एक्सेस, क्या है, ओपन एक्सेस टू द रिसर्च मटेरियल, कोलाबरेशंस, नेटवर्किंग एंड विजिबिलिटी, वो सारी चीजें क्या कर रही है, वो सारी चीजें हमें ये किताब के जरिए हमें ये सारी चीजें मिल रही है ना। ठीक है, शेयरिंग इनसाइट अक्रॉस द डिसिप्लिन, नेटवर्किंग, कनेक्टिंग रिसर्चर ग्लोबली, आइडियाज एंड विजिबिलिटी, इंक्रीजिंग एक्सप्लोर द स्कॉलरी वर्क। ठीक है, वो सारी चीजें हमें क्या हो रहा है, हम इसका एक्सेस कर पा रहे हैं, हम इसको फायदा। ठीक है, द एसेंशियल रोल ऑफ द पीर रिव्यू। अब क्या होता है, जब कोई किताब लिखते हैं, कोई बुक लिखते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसमें पीर रिव्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पीर रिव्यू क्या, क्यों इंपॉर्टेंट, क्या, क्योंकि वहां पर जब कोलोब्रेशंस में कोई चीज, जब चार लोग हमारी किताब को देखते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, तो हमें वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें वहां फाइंड आउट होती है, और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जबकि हम सिंगल सिंगल क्या होता है, सिंगल बंदा अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो उसको नजर में नहीं आएगी, लेकिन जब वो उस किताब का पीर रिव्यू होगा, और आजकल के दौर में कोई भी जर्नल हो, यूजीसी ने तो सारे जर्नल्स को पीर रिव्यू की कैटेगरी में वैलिड कर दिया कि जो पीर रिव्यू जर्नल होगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। कौन एक्सेप्ट करेगा, वो जो भी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सारे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जब भी हम कोई किताब पब्लिश करते हैं तो उसका रिव्यू जरूर होना चाहिए। ठीक है, अपने कलीग्स थे, अपने जो भी आपके जानकार हैं उन सब के। ठीक है ना। एकेडमिक रिकॉग्निशन, इम्पैक्ट एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है ना, वो जो मैंने बताया, रेपुटेशन क्या होता है, क्या पब्लिश वर्क इनहेंस योर द रेपुटेशन एंड ट्रस्ट एमंग द पीयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, है ना। वहाँ पर पता चलता है कि भाई आप ऑथर हो, आपने ये बुक लिखी है, और ये बुक कैसी लिखी है ना, उसका इम्पैक्ट भी होता है। क्या, एकेडमिक पब्लिशिंग सिग्निफिकेंटली बूस्ट योर विजिबिलिटी विद इन द स्कॉलरली कम्युनिटी। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट भी होता है। फिर उसके इम्पैक्ट के बाद क्या होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी, आपको क्या होता है, क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है आपकी, आपको लोग पहचानने लगते हैं कि भाई आप फला बुक के राइटर हैं, है ना, आपने ये बुक लिखी है और इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट दिए, और वो रेफरेंस भी आपके स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह। ठीक है, कंट्रीब्यूशंस टू साइंटिफिक प्रोग्रेस। ठीक है, अब क्या है, इनोवेशंस, कोलैबोरेशंस एंड एप्लीकेशंस, है ना। तो ड्राइविंग न्यू डिस्कवरीज एंड इनसाइट द थ्रू द रिसर्च, है ना, ब्रिंगिंग टुगेदर डाइवर्स एक्सपर्टीज एंड बेटर आउटकम, एप्लीकेशंस, ट्रांसलेटिंग रिसर्च इनटू द रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन ऑफ द बेनिफिट। तो ये सारी चीजें क्या है, साइंटिफिक प्रोग्रेस है, जब कोई हम अपना इनोवेशंस करते हैं। ठीक है, तो इनोवेशंस क्या करता है, जब कोई नई डिस्कवरी होती है, कोई नई रिसर्च होती है, हम उस पर अपनी किताब जब मार्केट में लाते हैं तो लोग पढ़ते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, द एकेडमिक बुक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एकेडमिक बुक्स के का फॉर्म क्या होता है, किस किस तरह की एकेडमिक बुक्स होती है। ठीक है, तो अब एकेडमिक बुक्स क्या होती है, मोनोग्राफ्स, ओवरव्यू, है ना, मोनोग्राफ जो होती है ना, मोनोग्राफ बुक्स होती है। ठीक है ना। इन डेप्थ स्टडी, क्या है ना, मोनोग्राफ प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट इनटू द स्पेसिफिक टॉपिक बाय ए सिंगल ऑथर। मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ क्या है, मोनोग्राफ्स क्या है, मोनोग्राफ से जो सिंगल ऑथर है वो क्या कर रहा है, उसको मोनोग्राफ्स को मोनोग्राफ्स की शक्ल में, मतलब एक बुक की शक्ल में ला रहा है। रिसर्च फोकस, द प्रेजेंट ओरिजिनल रिसर्च शो कॉजिंग यूनिक पर्सपेक्टिव एक्सटेंसिव बिब्लियोग्राफी फॉर द रेफरेंसेस। द एकेडमिक कंट्रीब्यूशंस क्या है, मोनोग्राफ्स आर क्रूशली फॉर द एडवांसिंग नॉलेज, often become the foundation text in their field।
तो ये क्या होता है, एक मोनोग्राफ ओवरव्यू होता है। ठीक है, तो अनदर वन द एडिटेड वॉल्यूम। ठीक है ना, अब ये क्या एडिटेड वॉल्यूम, और एडिटेड वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि आपने कहा कि बुक है एडिटेड। अब ये एडिटेड बुक क्या होती है, एडिटेड बुक बेसिकली जो फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक किसी टॉपिक पे आपने बहुत सारे ऑथर्स से, बहुत सारे मतलब रिसर्च स्कॉलर से, टीचर्स से, प्रोफेसर से, एसोसिएट प्रोफेसर से, उसमें एक कलेक्शंस आपने एक कलेक्शन बनाया, उस कलेक्शंस को आपने एडिट किया। आपकी एडिटेड टीम में कोई 2 लोग, 4 लोग, 1 लोग, कितने भी हो सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो एडिटेड बुक है। जैसे मैंने कहा था कि जो मोनोग्राफ्स की बुक्स है उसमें एपीआई स्कोर का 10, और एडिटेड बुक में एपीआई स्कोर का 8, मतलब जो स्कोर काउंट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या था, कोलैबोरेटिव वर्क है ना। वहां पर जो वर्क था वो सिंगल वर्क था, लेकिन एडिटेड बुक में कोलैबोरेटिव वर्क। ठीक है ना। तो एडिटेड वॉल्यूम कंप्लाइज द ऐसे फ्रॉम द मल्टीपल स्कॉलर, शो कॉजिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन ए टॉपिक, है ना। डाइवर्स पर्सपेक्टिव क्या है, the each easy contribute unique insight enriching the overall discussion and scholarly discourse, है ना। curated collections, edited volume are carefully curated to provide the comprehensive coverage of specific academic subject। ठीक है, तो वो मोनोग्राफ्स होता है, यहाँ एडिटेड बुक्स होती है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बुक आती है। अब टेक्स्ट बुक क्या होती है, सब लोग एक्चुअली आई थिंक तो ऑल पीपल्स आर फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड, और सब लोग जानते हैं कि टेक्स्ट बुक क्या है। ठीक है, core material. Textbooks are the essential for the structural learning and provide the curriculum based content for the courses, है ना। प्रैक्टिकल गाइड होती है, सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज होते हैं, है ना। सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक ऑफन इंक्लूड द सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज लाइक ए क्विज़ेस, ऑनलाइन मटेरियल, इनहेंस लर्निंग। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक, मोनोग्राफ, एडिटेड बुक, टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। रेफरेंस बुक होती है, और रेफरेंस बुक और एनसाइक्लोपीडियाज है, डिक्शनरीज हैं, और हैंड बुक्स। ये क्या है, ये रेफरेंसेस बुक है। ठीक है ना। और बहुत सारे और जो है ना, बहुत सारी जैसे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग जो भी कॉन्फ्रेंस में प्रोसीडिंग होती है, तो हम उसको क्या करें, उसकी भी एक बुक हम लोग जो भी मतलब बुक होती है, उसकी भी ना बुक को हम क्या करते हैं, पब्लिश करा सकते हैं उसकी प्रोसेसिंग को, है ना। जब भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में कॉन्फ्रेंस होगी, तो क्या है, ये क्या होता है, रिसर्च पेपर जो आ रहे हैं ना आपके, वो जो रिसर्च पेपर आ रहे हैं, उस रिसर्च पेपर को क्या करा रहे हैं, आप जो पब्लिश करा रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोसीडिंग कहलाती है। ठीक है ना। द कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग कंपाइल द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग presented the academic meeting, show causing cutting edge of the research, peer review, उसका peer review होता है। ठीक है ना, पेपर undergo the peer review to ensure quality, rigor and relevance of the academic community. Future directions, the conference highlighted future research direction, fostering the connections among the scholar and promoting collaboration। तो ये क्या था, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग होती है। ठीक है ना। अब इसके अलावा बहुत सारी बुक्स होती हैं। बहुत सारी बुक्स कैसी होती है, कोई हिस्ट्री की बुक्स है, पॉलिटिकल साइंस की बुक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, मेडिकल्स की बुक्स है। तो अलग अलग चीज होती है, लेकिन मेथड क्या होता है, मेथड यही होता है कि मोनोग्राफ, ठीक है, एडिटेड बुक, है ना, अनदर वन द प्रोसीडिंग बुक, और दूसरी क्या होती है, और तीसरी बुक होती है, क्या बताया मैंने आपको, क्रॉन पे, और रेफरेंस बुक। ठीक है, रेफरेंस बुक बस जाते इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, हैंड बुक है। ठीक है, अब अब ये जो चीज मैंने बताया था, मोनोग्राफ वर्सेस द एडिटेड वॉल्यूम, है ना। अब हम मैं एक्चुअली ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये उसमें भी सारी चीज देते हैं। फीचर्स क्या है, मोनोग्राफ और एडिटेड में ऑथर क्या होता है, सिंगल और फ्यू ऑथर्स। ठीक है ना। लेकिन एडिटेड बुक में क्या होता है, मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स। फोकस क्या होता है, डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ द वन टॉपिक, लेकिन एडिटेड वो डाइवर्स द पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चर्स, कंटिन्यूस आर्गुमेंट, थेमेटिक सेक्शंस, और यूज क्या था, रिसर्च डिसेमिनेशंस एंड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म। वहां पर रिसर्च डिसेमिनेशंस, और वहां पर कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है। तो ये इसमें क्या होता है, ये इसमें मोनोग्राफ और एडिटेड बुक में ये डिफरेंस होता है। ठीक है ना। अब द पब्लिशिंग इकोसिस्टम, हाँ, तो पब्लिशिंग इकोसिस्टम में हम बात करेंगे कि जो पब्लिशिंग लैंडस्केप है, ठीक है ना, वो क्या क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब क्या होता है, जब पब्लिशिंग में हम लोग जाते हैं, तो देर आर द टू थिंग। एक तो होता है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, दूसरा होता है सेल्फ पब्लिशिंग,
और थर्ड वन इन द ओपन एक्सेस पब्लिशिंग। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब ये ट्रेडिशन पब्लिशिंग क्या है? ट्रेडिशन पब्लिशिंग क्या है? ट्रेडिशन पब्लिशिंग इज द वेरी ओल्ड मेथड, है ना। उसमें पब्लिशिंग फंडिंग, पब्लिशर फंडिंग। अब ये क्या करता है? ट्रेडिशन जो पब्लिशर होता है उसमें क्या करता है, कोई भी पब्लिशर आपकी बुक को पब्लिश करने के लिए वो खुद फंडिंग करता है। ठीक है, तो उसमें आपकी क्या होना चाहिए? आपकी क्वालिटी अच्छा होनी चाहिए, है ना, आपका एक्सक्लूसिव वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो पब्लिशर क्या करता है? फंडिंग करता है। पब्लिशर्स कवर द एडिटिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट इंटायरली। सेलेक्टिव प्रोसेस क्या होता है? रिगर्स पीयर रिव्यू इंश्योर हाई क्वालिटी सबमिशन। ठीक है, कौन सा बहुत अच्छा काम होगा तभी वो पब्लिशर आपके लिए आपको आपकी बुक को एक्सेप्ट करेगा। रॉयल्टी स्ट्रक्चर, ऑथर रिसीव ए स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द रॉयल्टी। अब ये क्या होता है? ट्रेडिशन जो पब्लिशिंग था, जब कोई पब्लिशर आपकी बुक किताब को पब्लिश कर रहा है तो वो क्या करता है? वो बहुत छोटा अमाउंट देता है आपको रॉयल्टी का और सारा कुछ अपना रख लेता है। वो आगे हम आपको वो एक टेबल है, टेबल को कंपैरिजन करके बताएंगे। ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या है? अब इसमें क्या है? ट्रेडिशन पब्लिशिंग क्या है? अब क्या सिस्टम क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन होती है उसकी। ठीक है, उसके बाद पीर रिव्यू प्रोसेस होता है, फाइनल एडिटिंग होती है, उसके बाद पब्लिशिंग होती है। ये ट्रेडिशन पब्लिशिंग कहलाती है, जो पब्लिशर जब जो जो पब्लिशर आपको पब्लिश करके दे रहा है। ठीक है ना। अब तो क्या है? इम्प्रेस द सेल्फ पब्लिशिंग फ्रीडम। अब ये क्या है? अब एक कॉन्सेप्ट आया। वो कॉन्सेप्ट क्या आया कि जो ट्रेडिशन पब्लिशिंग थी, ट्रेडिशन पब्लिशिंग में जब लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगी, जब लोगों की अपने किताब नहीं छप पा रही थी, ठीक है, तो पर एक और सिस्टम वहां पर क्रिएट हुआ। उसका नाम सेल्फ पब्लिशिंग रखा गया। और सेल्फ पब्लिशिंग क्या है? सेल्फ पब्लिशिंग क्या करता है? आपको फ्रीडम देता है कि आपने जो काम किया है, आपकी जो रिसर्च है, उस रिसर्च को क्या हो रहा है, उस रिसर्च को आप आसानी से पब्लिश कर सकते हैं, सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल होता है। ऑथर मैनेज द एक्सपेंस एंड कीप ऑल प्रॉफिट। क्या होगा? जो भी खर्चा होगा वो ऑथर का होगा, पब्लिशर का नहीं होगा। लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा किसका होगा? वो पब्लिक जो ऑथर है उसका होगा। ठीक है, फुल क्रिएटिव कंट्रोल, राइटर शेप दियर वर्क विदाउट द एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट। ठीक है। और क्या होता है? क्विक पब्लिकेशन। क्या होता है? कोई भी ट्रेडिशन पब्लिशर में क्या करता है? पब्लिशर आपकी किताब को रख लेगा 1 महीना, 6 महीना, 5 महीना, 7 महीना, साल, 2 साल भी पब्लिश कर सकता है। लेकिन सेल्फ पब्लिशिंग में आप फ्री हो और उसका पब्लिकेशन क्या होता है? क्विक पब्लिकेशन होता है। पब्लिश योर वर्क इमिडिएटली, रीचिंग रीडर स्विफ्टली, है ना। तो ये क्या है? ये सेल्फ पब्लिशिंग है ना। अब क्या है? सेल्फ पब्लिशिंग की टाइमलाइन क्या होती है? राइटिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट, एडिटिंग फॉर क्वालिटी और फॉर्मेटिंग फॉर द रिलीज। ये हो गया आपका सेल्फ पब्लिशिंग का। तो अनदर वन क्या है? अनदर वन है ओपन एक्सेस पब्लिशिंग, है ना। एक्सपेंडिंग नॉलेज एक्सेस। ये ओपन एक्सेस क्या है? अब थर्ड चीज जो है ओपन एक्सेस, क्या? ओपन एक्सेस एक्चुअली ये ई बुक है, ई पब्लिशिंग प्रोसीजर है, जो हम आसानी से फ्री में किसी भी कंटेंट को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है यार मुझे पैसे की जरूरत नहीं है और मैं अपनी बुक को ना पब्लिक कर दे रहा हूं ताकि लोग उससे फायदा उठा सकें ना। तो फ्री एक्सेस क्या है? ओपन एक्सेस प्रोवाइड द फ्री ऑनलाइन एक्सेस रिसर्च, है ना। बहुत सारे देखने को किताब बुक्स आपकी वहां पर अवेलेबल है नेट पर। ठीक है ना, वो ओपन एक्सेस है। इनहेंस विजिबिलिटी, इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये है कि आपकी किताब, कोई होगा किताब अगर आपकी ज्यादा रेट में है, उसको पढ़ने के लिए कोई लोग कम खरीदेंगे, पैसा कम खर्च करेंगे। लेकिन जब ओपन एक्सेस, क्या है आजकल का जो दौर है वो इंटरनेट का दौर है। ओपन एक्सेस में क्या कर रहे हैं? आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या होगा? आपका जो रिसर्च वर्क है उससे क्या होगा? उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। ठीक है। आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, सम ओपन एक्सेस जर्नल में रिक्वायर द एपीसी और पब्लिकेशंस। ठीक है ना। तो क्या होता है? जैसे आर्टिकल्स होते हैं वो भी मोस्टली बहुत सारे पैसे वाले आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे ओपन एक्सेस आर्टिकल होते हैं, जैसे गूगल स्कॉलर है ना, मैट पैब और बहुत सारे ऐसे जो साइट्स है जो ओपन एक्सेस हैं पेपर्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए, बुक्स भी अवेलेबल है। ठीक है। ओपन एक्सेस टाइमलाइन, सबमिशन मैन्युस्क्रिप्ट, पीयर रिव्यू प्रोसेस एंड एपीसी पेमेंट, है ना। पेमेंट होता है जो पेमेंट है। ठीक है। तो अनदर वन इज द, अब हम लोग जो बात कर रहे थे, अब हम रॉयल्टी की बात करते हैं।
कि जो हमारी ट्रेडिशनल रॉयल्टी थी, ट्रेडिशनल रॉयल्टी में क्या होता था कि रॉयल्टी रेट इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 5%, 7.5%, 10%, 12.5%, 15%, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बुक है, आपने कोई कोई पब्लिशर ने कोई आपकी बुक पब्लिश की है, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुक प्राइस यानी 100, कोई सपोज करो ये 100 रुपीज की कॉपी है और जिसकी नंबर ऑफ द बुक सोल्ड है 1000, ठीक है। तो वहां पर क्या होगी रॉयल्टी, अगर आपकी अगर अगर पब्लिशर आपकी बुक को पब्लिश करता है और उस पब्लिश और बुक बुक जो 1000 अगर बुक बिकती है, तो आपको ओनली एंड ओनली आपको 7500 रुपीज रॉयल्टी मिलेगी। और जो पब्लिशर की इनकम है 92,500 होगा और टोटल अमाउंट है 1 लाख। यानी कि पब्लिशर है आपकी कोई बुक ले रहा है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये रेटेड है, इसमें थोड़ा सा कोई पब्लिशर 5%, कोई 7%, कोई 10%, 12 और 15। 15 इज द हाईएस्ट, है ना, 15% तक का क्या कहता है रॉयल्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया देखिए, फॉर एग्जांपल अब आप देख रहे हैं, अब हमने बताया इसका क्या क्या कि फॉर एग्जांपल ये कोई 100 रुपए की प्राइस है किसी बुक की, और उस 100 रुपए की प्राइस में अगर आपकी 1000 बुक्स अगर सेल हो रही है, तो वहां पर 7.5% की क्या रॉयल्टी देगा वो। और क्या हो गया, अब आपको कितना मिला, अब आपने इतनी मेहनत की, आपने बुक को लिखा, सब कुछ किया, है ना, उसके लिए रिसर्च की, सब कुछ किया, लेकिन वो क्या कर रहा है आपको, है ना, पब्लिशर क्या कर रहा है आपको, पब्लिशर क्या कर रहा है आपको, वो सिर्फ आपको किसके रॉयल्टी के 7500 रुपीज दे रहा है, ठीक है ना। अब वो कितना अपने पास रख रहा है, वो 92,500 रुपीज अपने पास रख रहा है। टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपीज है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर किसी बुक की प्राइस 140 रुपीज होती है, तो इसमें इस तरह से हमने कैलकुलेट करके 7.5% के हिसाब से क्या कर दिया, ये हमने यहाँ पर ये इसका अमाउंट निकाल दिया कि कितना परसेंट, कितना आपको मिल सकता है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आपकी 250 रुपीज की कोई बुक होती है, तो इसमें क्या होगा, आपकी अगर 1000 बिकेंगी तब 8750 रुपीज की क्या होगी, आपकी रॉयल्टी आएगी, ठीक है। तो अब ये क्या एस्टिमेट्स रॉयल्टी ऑफ द ऑथर 75 प्राइस इतना इतना है, ठीक है, कॉपी सोल्ड, तो जो जो हमने दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, 1000 उस पर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पब्लिशर है, पब्लिशर क्या कर रहा है, पब्लिशर आपकी सारी जो भी मेहनत को ना, वो मतलब आपको लग तो रहा है कि मेरी बुक मतलब फ्री में छप गई, मैंने बुक को अपनी को फ्री में छपवा दिया, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सारा अमाउंट आपका आपको 7.5% अमाउंट आपको दे रहा है एज ए ऑथर, राइटर, और सारा जितना भी आप और रेस्ट ऑफ द इनकम वो क्या कर रहा है, उसकी खुद की इनकम है, ठीक है, वो खुद उसको इनकम को ले रहा है, ठीक है। तो ये है। तो अब ठीक है, अब ये क्या है, अब वो अब जो रॉयल्टी रेट्स है, रॉयल्टी रेट 7.6 to 15% और 5% भी है, लेकिन हमने एवरेज निकाला। लेकिन लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सेल्फ पब्लिशिंग है, वो सेल्फ पब्लिशिंग क्या करती है, सेल्फ पब्लिशिंग आपको 30 से लेके कितने तक 100% तक आपको रॉयल्टी प्रोवाइड करती है। कि सपोज दैट आपने कोई भी बुक को सेल्फ पब्लिश किया, ठीक है, और किसी भी बुक की कीमत आप समझ लिए 200 रुपीज है, ठीक है, क्या है, 200 रुपीज है। तो ठीक है, अब इस 200 रुपीज में आपकी जो मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट है, सपोज दैट 100 रुपीज आ रही है, ठीक है, 100 रुपीज आ रही है। तो आपको कितनी रॉयल्टी मिल रही है सेल्फ पब्लिशिंग में, कितनी रॉयल्टी मिल रही है सेल्फ पब्लिशिंग में, आपको अप्रोक्सीमेटली 50% रॉयल्टी मिल रही है, ठीक है, 50% रॉयल्टी। लेकिन ये तो मैं सिर्फ एक एक 200 रुपीज, देखो बहुत सारी किताब ऐसी होती हैं जिनकी कीमत 1000 रुपीज होती है, ठीक है ना, 1000 रुपीज होती है। 1000 रुपीज में क्या है, 1000 रुपीज की किताब का सपोज दैट आपकी किताब का 400 रुपीज या 400 रुपीज या 400 रुपीज प्रिंटिंग कॉस्ट आती है, ठीक है। प्रिंटिंग कॉस्ट कितने की आ रही है, प्रिंटिंग कॉस्ट आ रही है आपकी
ठीक है, 400 रुपीज की, है ना, 400 रुपीज की प्रिंटिंग कॉस्ट आ रही है, तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, 600 रुपीज आपको क्या बढ़ रहा है, 600 रुपीज आपको सेव हो रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर कितना मिल रहा है, यहाँ पर आपको 60% अप्रोक्सीमेटली आपको क्या मिल रहा है, आपको 60% की रॉयल्टी मिल रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से रॉयल्टी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम सेल्फ पब्लिशिंग करते हैं तो रॉयल्टी हमें ज़्यादा मिलती है, और सेल्फ पब्लिशिंग बहुत आसान है, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल पब्लिशिंग कराते हैं तो हमें रॉयल्टी की कीमत कम मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, रॉयल्टी का सिस्टम है, जो भी मतलब पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। अब अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जरा इसे डिलीट कर दूं। ठीक है। अब चूजिंग द राइट पब्लिशर, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ठीक है, आपने क्या कर दिया, अब आपने मतलब एक अपनी किताब लिखी, है ना, अब इसमें क्या करना है, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये देखें कि हमें पब्लिशर, कौन पब्लिशर हमें अच्छा है, कौन पब्लिशर अच्छा है, जो हमें ज्यादा रॉयल्टी दे सके, ज्यादा हमें हमारी बुक्स को अच्छी क्वालिटी में, क्योंकि आजकल के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक किताब, अगर आप 200 पेज की किताब है, वो 50 रुपीज में छप रही है और 250 रुपये में भी छप रही है, ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी बुक अगर आप छप रहे हैं, तो आपकी उस बुक की क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्वालिटी कैसी है, ठीक है, कैसी क्वालिटी की हमें पब्लिशर छापेगा, अगर वो हमसे अगर पैसे ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है पैसे, वो सारी चीज़ों को देखा। अगर जैसे सेल्फ पब्लिशर, बहुत सारे लोग हैं सेल्फ पब्लिशर में खुद से पब्लिश नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, जो पब्लिशर है मैं बुक को तो सेल्फ पब्लिश कराता हूँ, लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखवाना और प्रिंटिंग पर कराना वो मैं करवा, तो ऐसा भी सिस्टम होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अलाइन टॉपिक्स, है ना, चेक रेपुटेशंस, रिव्यू गाइडलाइन, ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इंश्योर योर द बुक टॉपिक अलाइन विद द पब्लिशर सब्जेक्ट फोकस फॉर द बेटर चांसेस ऑफ द एक्सेप्टेंस, ठीक है। फिर चेक रेपुटेशंस के, उस जो जिस पब्लिशर के पास जा रहे हैं उसकी रेपुटेशंस कैसी है ना, वो मार्केट में उसका कुछ, हाँ, मार्केट में उसकी कोई विजिबिलिटी है या नहीं है, वो कैसे बुक छापता है, उसकी क्वालिटी क्या है ना। रिव्यू गाइडलाइन, और उसकी रिव्यू गाइडलाइन आपको पढ़ना पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि वो हमारी बुक को रिव्यू कराता है या नहीं कराता, कि ऐसे ही बस आपसे कंटेंट लिया और आपको और उसको बुक को छाप दी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एथिकल कंसिडरेशन फॉर द पब्लिशर, तो अभी किसमें क्या होना चाहिए, क्या है इसमें, कि भाई जो बुक आप छाप रहे हो, आप बुक जिस पब्लिशर का बुक छपवा रहे हो, उसका चैनल कैसा है, ठीक है, एक्सेस टू रीच द डिस्ट्रीब्यूशन पेथवे, एथिक्स, इंश्योर द एडहेरेंस द एथिकल पब्लिशिंग प्रैक्टिस, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपसे उसने मैन्युस्क्रिप्ट ले ली और उसके बाद किसी दूसरे के नाम से छपवा दिया, है ना। रीकैप, रिफ्लेक्ट ऑन द की पॉइंट ऑफ द डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन, इंगेज विद द ऑथर्स एंड रिव्यूअर इफेक्टिवली, है ना। आप उनसे उनसे कभी, ठीक है, आप ऐसे कर रहे हो, मुझे मुझे क्या करो, आप जो रिव्यूअर्स है ना मेरा कांटेक्ट कराओ, मैं रिव्यूअर से डायरेक्ट थोड़ा सा बात करूंगा और अपने जो मेरी मैन्युस्क्रिप्ट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा, ताकि मैं उस पर और अच्छा काम कर सकूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको करना होगी, ठीक है। कॉपीराइट बेसिक्स, है ना, जब कोई किताब आप, किताब के कॉपीराइट दो एक तो कॉपीराइट एक्ट है, ठीक है ना, उस कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने कॉपीराइट का जो एक ऑफिस होता है उसमें अपनी बुक के कॉपीराइट को रजिस्टर करा सकते हैं। या दूसरी चीज है आईएसबीएन नंबर। तो आईएसबीएन नंबर क्या है, आईएसबीएन नंबर ने अगर आपने करा लिया तो समझ लिया वो चीज आपकी, आईएसबीएन जो ऑफिस होता है वहां पर वो क्या हो गई, वो स्टोर हो गई, वो रजिस्टर्ड हो गई बुक। दो दो चीज है। लेकिन अगर आप इसके बाद भी चाहते हैं कि मैं अपनी बुक का कॉपीराइट कराऊं, तो आप अपनी बुक का कॉपीराइट सेपरेटली करा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी कॉपीराइट होता क्या है, ठीक है। कॉपीराइट, आई थिंक एवरीवन नो अबाउट द कॉपीराइट। कॉपीराइट इज द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ फॉर योर क्रिएटिव वर्क, है ना। ऐसा ना हो कि भाई जो आपने लिखा है आपके काम को कोई चुरा ले और कहते नहीं ये तो मेरा काम है ना। लेकिन अगर आप कॉपीराइट कराते हैं उस काम का, तो ये इंश्योर हो जाता है कि वो काम किसका है, वो काम आपका है,
ठीक है, कोई उसको रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, उन वो अनऑथराइज पर्सन उसको क्या नहीं कर सकता, अनऑथराइज पर्सन उसको नहीं करता। तो यही क्या करता है, कॉपीराइट एक्ट क्या करता है, ये सारा हमें लीगल प्रोटेक्शन देता है, हमारा जो काम होता है। ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ द कॉपीराइट, कॉपीराइट इन इंडिया टिपिकली लास्ट 60 ईयर या आफ्टर द ऑथर्स डेथ, है ना। तो ये क्या, कॉपीराइट का ड्यूरेशन क्या होता है, कोई भी किताब अगर आप छपवाते हो तो कहते नहीं है वो, एक LIC का लोगन क्या था कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो कॉपीराइट क्या करता है, हमें जिंदगी के बाद भी प्रोटेक्शन देता है, यानी कि कॉपीराइट इन इंडिया टिपिकली लास्ट 60 ईयर्स आफ्टर द ऑथर्स डेट, है ना। 60 साल तक ऑथर्स की डेट के साल साल तक चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। और उस बुक को कोई भी अपना मतलब कोई ट्रांसलेशन बिना परमिशन के कर सकता है, लेकिन जब तक ऑथर है और उसकी फैमिली है, तो क्या कर रहा है उसको, उनसे आपको किसी भी, अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसके लिए परमिशन लेने पड़ेगी, या उसका कुछ और कर रहे हैं उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगी, ठीक है ना। तो बेसिकली कॉपीराइट क्या करता है, कॉपीराइट हमें लीगल प्रोटेक्शंस ऑफ आवर वर्क, है ना। तो the provide the legal protection for the creative works against the unauthorized use and reproduction. It is essential to understand this timeline for the safeguarding your creation. ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ड्यूरेशन 6 ईयर ऑफ द ड्यूरेशन होता है, ठीक है। प्रोटेक्ट योर राइट, कॉपीराइट सेफगार्ड योर द क्रिएटिव वर्क फॉर द अनऑथराइज यूज, है ना, जैसे कि हम ऑलरेडी पहले बताए। प्रोटेक्ट योर वर्क, रजिस्टर योर वर्क, स्टेटमेंट है, सीक लीगल एडवाइस। ये सारी चीजें जब भी कोई आप अपना काम कर रहे हैं, अगर आपके अपने काम को प्रोटेक्ट करना है तो क्या, रजिस्टर योर वर्क, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप अपने काम का जो भी आपका मैन्युस्क्रिप्ट है उसको उसका क्या करना है, रजिस्टर करानी चाहिए, और इंक्लूड ए कॉपीराइट स्टेटमेंट फॉर द इंफॉर्मेशन, किताब पर अपनी कॉपीराइट करना चाहिए, वो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ऑथर राइट एंड कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। अब ये क्या है, ऑथर राइट्स, ऑथर्स की क्या राइट है, वो जो लीगल मोरल राइट्स एक्सप्लेन, ठीक है, मोरल राइट्स होने चाहिए, जो भी आपकी ऑथर्स रिटेन वाइटल मोरल राइट्स इंश्योरिंग द रिकॉग्निशन ऑफ द देयर वर्क एंड प्रोटेक्टिंग देयर इंटीग्रिटी। These rights allow the creators to the subject to derogatory treatment of their work and fostering respectful environment within the literary, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए की कॉन्ट्रैक्ट एनिमल्स, रॉयल्टी परसेंटेज, प्रिंट एंड डिजिटल राइट एंड ट्रांसलेशन वर्क, ठीक है। अब जो भी बुक्स होती हैं, बुक्स क्या होती हैं, जो भी बुक्स होती है, अब बुक्स के साइजेस क्या होते हैं, किस साइज में, हमें कैसे पता चला कि हम कौन से साइज में अपनी बुक्स को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ साइजेस देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक के साइज क्या क्या साइज होते हैं, टेक्स्ट बुक का साइज होता है, ठीक है, ये ये कितना है, 5.5, यानी 5.5.5 इंचेस, और 8.5 इंचेस, यानी 5.5, 5.5 और 8.5 का स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक का क्या है, 6 6 इंटू 9, उसके बाद क्या है, 7 इंटू 10, और उसके बाद क्या है, 8.5 to 11 ये टेक्स्ट बुक के साइज है, ठीक है ना। अब ट्रेड एंड वर्क बुक का क्या साइज है, इसका भी साइज क्या है, क्या है, साढ़े 5, 8.5, ये सारा, ठीक है, उसका भी अप्रोक्सीमेटली वही है, ठीक है। और साइंस और रिलीजियस बुक्स है, उनका क्या है, 6 6 6 इंटू 9, 7 इंटू 10, 5.5, 8.5, और ये क्या है, 6.9, ठीक है। ये सारे साइजेस क्या कर सकते हैं, रिलीजियस साइंस बुक के, ठीक है। और ये चिल्ड्रंस बुक का साइज क्या होते हैं, 6x6, 6x8, 6x9 और 8x10, ठीक है, ये चिल्ड्रन बुक के साइजेस है, ठीक है। अब ये साइज समझ, अब एकेडमिक ब्लाइंड ऑफ स्कॉलरली आइडेंटिटी। अब लास्ट में, अब हमें क्या क्या जैसे कि हमने जो चीज अभी डिस्कस की है, उसमें हमने क्या क्या सीखा, उसने हमने सीखा कि सबसे क्या होगा, चूज योर पब्लिशर वाइजली, क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पब्लिशर्स है वो जो आपको बड़े सोच समझ के साथ आपको क्या होना चाहिए, पब्लिशर्स को चूज करना चाहिए, ठीक। रिसर्च, investigate potential publisher throughout the before the deciding, evaluate, assess your the reputation and fit your work,
प्रेजेंट इफेक्टिवली शोकेस ऑफ योर वर्क पोटेंशियल एंड पब्लिशर्स, ठीक है ना। आप प्रोटेक्ट योर कॉपीराइट एंड राइट, जैसे हमने बताया ऑलरेडी है ना, कॉपीराइट्स है, ओनरशिप है, निगोशिएशन है ना। इसके अलावा क्या है, और बुक प्रपोजल एंड मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशंस है ना, प्लानिंग आउटलाइन योर आइडियाज एंड स्ट्रक्चर्स, राइटिंग क्राफ्ट एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द क्लैरिटी एंड रिवीजन, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, अंडरस्टैंडिंग द पब्लिशिंग मॉडल्स, ओके। और अब क्या है, अब आज का जो इंट्रोडक्शंस का पार्ट तो खत्म होगा, जो भी बुक्स के बारे में, पब्लिशिंग के बारे में, सेल्फ पब्लिशिंग, सारी चीज़ों के बारे में लेकिन अब हम जो इस हफ्ते में जितना भी हम एआई टूल्स के बारे में पढ़ाएंगे, जो टूल्स हम यूज करेंगे, वो टूल्स ये है। वो टूल्स कौन कौन से हैं? बुक पब्लिशिंग टूल्स क्या है, हम यहाँ पर कैनवा एआई फॉर द बुक डिजाइन, कैनवा एआई को हम यूज करेंगे कि किस तरह से हम कैनवा एआई से क्या कर सकते हैं, बुक को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि टेम्पलेट, चूज योर द डाइवर्स बुक फॉर द टेम्पलेट्स, है ना, टेम्पलेट्स है बहुत सारे, customizations, easy customization, color, font and layout, share design with the co-author and peer, है ना, डाउनलोडिंग सेव डिजाइन फॉर मल्टीपल फॉर्मेट ऑफ द प्रिंटिंग। तो हमारा पहला ये वाला क्या होगा, कैनवा एआई ये फॉर डिजाइन, बुक डिजाइन, ठीक है ना। दूसरा एआई टूल्स होगा हमारा चैट जीपीटी फॉर द कंटेंट क्रिएशन, ठीक है ना। आउटलाइन, ड्राफ्ट, मार्केटिंग एंड आइडिया, जो सारी चीज हम लोग किससे सीखेंगे, चैट जीपीटी से सीखेंगे, ठीक है। और अनदर वन इज क्या है, द गूगल एआई स्टूडियो। अब गूगल एआई स्टूडियो क्या करेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जनरेट द आइडिया, कोलैबोरेट विद इफेक्टिवली, कंटेंट जनरेशन, क्रिएशन, कस्टमाइजेशंस एंड इंटीग्रेशंस, है ना। तो ये गूगल एआई स्टूडियो के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, परफेक्सिलिटी एआई फॉर द इफेक्टिव रिसर्च, है ना। बहुत सारी मतलब रिसर्च है, कंफ्यूजन है, कई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम कहाँ पर उसमें हम परफेक्सिलिटी एआई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और गूगल डॉक और माइक्रोसॉफ्ट, और हम जो भी फॉर्मेट होगा हमारा, जो भी फॉर्मेट होगा बुक का, उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल डॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सब लोग जानते हैं, हर किसी के कंप्यूटर में मोस्टली होता है, और गूगल डॉक भी हर किसी के कंप्यूटर्स पे अवेलेबल होता है, ठीक है ना। तो ये वाले ये है, इसके अलावा और कौन से, और इसके अलावा क्या है, अब एक और हमारे पास एआई टूल्स है, वो है 3D बुक कवर, ठीक है ना। तो 3D बुक कवर का एक हमारे पास एक है DIY, ठीक है, करके, ठीक है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इजी डिजाइन, कस्टम टेम्पलेट्स, परव्यू एंड मार्केटिंग रेडी, ठीक है। इन सारे टूल्स का हम इस पूरे सेशंस में यूज करेंगे ना, किस तरह से हम लोग यूज करेंगे वो सारा हम लोग डे बाय डे, वन बाय वन हम लोग इस पे लर्न करेंगे, ठीक है। तो अब एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको इस चीज़ का देना चाह रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आपके लिए एक काम, जैसे मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, तो वो असाइनमेंट एक है कि आप, दो चीज़ें हैं आपके पास, या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कीजिए या गूगल डॉक पे। गूगल डॉक पे मैं आपको प्रेफरेंस ज़्यादा इसलिए दूंगा क्योंकि गूगल डॉक एक ऐसा डॉग है, वो तो होता वर्ड की तरह है, वो उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे फीचर्स ये है कि वो जो भी कंटेंट है आपका क्या होगा, आपका ड्राइव में, आपकी जो कंसर्न ड्राइव है, जो ईमेल की ड्राइव है, उसी में सेव होगा। यानी क्या है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो उसके मतलब करप्ट होने के और उसके डिलीट होने के, है ना, कहते हैं, उड़ने के बहुत कम चांसेस होते हैं। जब अगर वर्ड पर अगर आप करेंगे कंप्यूटर में मैनुअली, तो क्या होता है, कभी आप सेव करना भूल गए, कभी कुछ करना भूल गए, तो वो क्या होता है, वो कंटेंट फिर आपको का लॉस्ट हो जाता है। जब कंटेंट लॉस हो जाता है तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको एक ऐसा एआई टूल ले लीजिए जो आपको जो आपके मतलब कंटेंट को क्या कर दे, आपका सेव कर ले। देखिए फॉर एग्जांपल, ये सब लोग जानते होंगे, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको इसमें दिखाता हूँ, जैसे कि हमने एक असाइनमेंट सिर्फ दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कोई भी आपका गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव क्या है, आपने कोई क्या, बहुत आसान है, गूगल ड्राइव कहाँ से गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव आपने यहाँ से क्या किया, ओपन कर लिया, ठीक है। या गूगल ड्राइव ओपन नहीं कर लिया तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, एक आपको यहाँ पर गूगल डॉक मिलता है, ठीक है ना। गूगल डॉक दिखाई दे रहा है, ये गूगल डॉक है, गूगल डॉक को आपने ओपन किया,
ठीक है, गूगल डॉक को ओपन किया, गूगल डॉक को ओपन करने के बाद बहुत सारे टेम्पलेट्स इस पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, आपने क्या है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक किया, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के सामने एक डॉक्यूमेंट खुलकर आ गया। ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट का खुलकर आ गया, और डॉक्यूमेंट खुलने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइल में जाना है। पहले तो सबसे पहले आपको अपनी बुक का, अपना जो जो प्रोजेक्ट है उसका नाम देना। फॉर एग्जाम्पल, वे ऑफ, आप एक कोई बुक लिख रहे हैं जिसका नाम वे ऑफ लाइफ इन मॉडर्न एज। ठीक है, ठीक है, या फिर मॉडर्न एज के साथ लिख दो AI। ठीक है, ठीक है, आपने एक बुक लिख रहा है जिसका नाम क्या है, लाइफ इन AI। ठीक है ना, एक आपने टाइटल बना लिया, टाइटल बन गया। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपल से, ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर फाइल पर जाना है। फाइल पर जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, और एक नीचे ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आएगा पेज सेटअप। तो आपको क्या करना है, कल सबसे पहले यही काम करना है। सबसे पहले आपको गूगल डॉक में जाके अपने पेज को सेटअप करना है। पेज सेटअप पे आप गए, यहाँ पर पेज सेटअप के बाद यहाँ पर आएगा पेजेस। पेजेस पे क्लिक किया, और यहाँ पर ना ये होल डॉक्यूमेंट्स है ना, अब लैंडस्केप लेना चाहते हैं या पोर्ट्रेट, तो हम तो पोर्ट्रेट लेना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर आ रहा है ना, तो आप जैसे जो भी साइजेस हमने बताए, बहुत सारे साइजेस हैं यहाँ पर, उस साइज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आप अपनी बुक जो चुने। लेकिन जो मोस्टली बुक जो रिलीज होती है उसका साइज होता है 5.5 और 8.5। ठीक है ना, उसका क्या होता है, 5.5 और 8.5 जो एकेडमिक बुक मोस्टली होती है, नहीं, या उसका थोड़ा सा चेंज क्या होगा, या फिर उसका 6.6/6 इंटू 9 होगा, है ना, इससे आधा इंच बड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के लिए अब हमें क्या करना है, जब भी कोई कंटेंट हमारे पास होता है ना, उस कंटेंट को हमें यहाँ पर देना, ऊपर कितना, मतलब टॉप पर कितना हमें इसमें गैप देना है, बॉटम में कितना देना है, और लेफ्ट में कितना देना है, और राइट में कितना। ठीक है, सपोज दैट हमने एक स्टैंडर्ड साइज लिया, टॉप पर हमने 0.0.60 दे दिया। ठीक है, बॉटम पे क्या किया, बॉटम पे भी हमने 6.60 दे दिया। ठीक है, लेफ्ट में, अब लेफ्ट में चूंकि हम ज्यादा देंगे, क्योंकि जब लेफ्ट में है ना, हमें स्पेस इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि वहां पर बाइंडिंग होती है। तो हमने यहाँ पर किया 0.75। ठीक है, राइट में क्या किया, राइट वाला हमारा ये होता है, राइट में हम ये वहां पर 0.65 देते थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमने मार्जिन जो है ना, मार्जिन जो है इंचेस में, मार्जिन को हमने क्या सेट कर लिया, और यहाँ पर ओके कर लिया, और ये हमारा एक पेज यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब इस पेज क्रिएट होने के बाद हम अपनी राइटिंग से करते हैं। अब पहले पेज पे क्या होगा, आप सपोज करो पहला पेज जो है, सबसे पहले पेज पे क्या आता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो पहले पेज पे हम लोग क्या करेंगे, पहले पेज पे, ठीक है, अब हमारा क्या आएगा, पहले पेज पे टाइटल आएगा। ठीक है, अब देखिए, अभी वहां पर क्या, पहले पेज पे हमें क्या करना है, पहले पेज पे जो भी टाइटल है वो टाइटल आएगा। इमेज जो भी टाइटल आप देंगे, ठीक है, टाइटल आएगा। उसके बाद ऑथर का नाम आता है, ऑथर का नाम आता है, ऑथर के इंस्टीट्यूशन का नाम आता है, और जो पब्लिशर है, पब्लिशर इसका लोगो लगता है। उसके बाद हमारा दूसरा पेज कहलाता है, ठीक है, टाइटल पे। टाइटल क्या मतलब, जो भी हमारा, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा टाइटल जो होता है ना, टाइटल पेज, ठीक है, द कलर ऑफ द, जो भी टाइटल टाइटल दिया, उसके बाद ऑथर का नेम दिया, उसके बाद ISBN नंबर दिया, और फिर कॉपीराइट ऑथर का। अब ये देखो, ये चीज जो है, जो कॉपीराइट होती है, दो तरह की कॉपीराइट है। जब अगर हम सेल्फ पब्लिशिंग करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑथर का नाम देंगे कॉपीराइट में। अगर ये पब्लिशर पब्लिश करता है, तो वहां पर किसका होता है, भारत, भारत पब्लिकेशन, यहाँ पर किसका नाम आता है, भारत पब्लिकेशन हाउस का नाम आता है। ठीक है ना, उसके बाद हम पब्लिशर का नाम देंगे,
ठीक है, जो भी एड्रेस है उसके बाद अपनी जो भी डिटेल है वो देंगे, और यहाँ पर एक एक नोट लिख लेंगे, ऑल राइट रिजर्व, कॉपीराइट प्रोटेक्ट दिस बुक, नो इंफॉर्मेशन स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम में बी रिप्रोड्यूस इंक्लूडिंग द फोटोकॉपिंग दिस बुक विदाउट द रिटन परमिशन फ्रॉम द कॉपीराइट ऑनर। ठीक है, और यहाँ पर एक प्राइस सेट करते हैं कि प्राइस क्या है, और यहाँ पर एडिशन लगते हैं कि एडिशन क्या है, डेट क्या है, मंथ क्या। ओके, उसके बाद क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट आता है। टेबल ऑफ कंटेंट आता है, जो भी आपकी बुक का टेबल ऑफ कंटेंट होगा उस टेबल ऑफ कंटेंट को हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लेंगे टेबल ऑफ कंटेंट को, उसके बाद एक एक पेज हमने ब्लैंक छोड़ दिया, वो हम बताएंगे आपको क्यों छोड़ दें। उसके बाद जो भी प्रेफेस है आप प्रेफेस दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो भी इंट्रोडक्शन है आपकी बुक का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, द यह क्या होगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। अब चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर यहाँ से शुरू हो गया। चैप्टर शुरू होते 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 सबसे जब लास्ट में हम किताब बुक का जाएंगे, तो सबसे लास्ट में क्या कर देते हैं हम, सबसे लास्ट में बुक को क्या करते हैं, बुक को हम फॉर्मेट करके यहाँ पर सबसे लास्ट में रेफरेंसेस इसमें देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, रेफरेंसेस हम यहाँ इसमें प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो क्या कराते हैं, रेफरेंसेस हम क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं इसमें, वो सबसे लास्ट में होता है। ठीक है ना, जब सबसे लास्ट में रेफरेंसेस प्रोवाइड कराएंगे, और ये यहाँ पर हम टाइटल हर बुक पे कैसे देंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे सब सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं। ठीक है ना, तो एक एक चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे और सब कुछ करेंगे। ठीक है ना, और ताकि आप लोग और अच्छे से सीखेंगे, लेकिन मैंने इसलिए ये चीज़ आपको बताया है, ये तो बात की मैटर था, ताकि आप, हम दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट होती है आईएसबीएन का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपको आईएसबीएन लेना पड़ता है किसी किताब के लिए। और दूसरी चीज़ होती है आपकी बुक की फॉर्मेटिंग, क्योंकि जितना भी टाइम लगता है आपकी बुक फॉर्मेटिंग में लगता है। क्योंकि कंटेंट तो मेरे ख्याल से आप सभी सभी लोग टाइप कर देंगे, कंटेंट है ना, टाइप करके आप कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेटिंग को करना है। इस फॉर्मेटिंग जितनी आसान लग रही है ना आपको, ये उतनी आसान है नहीं, है ना। इसमें बहुत सारी बुक्स में फोटोग्राफ्स आते हैं, उन फोटोग्राफ्स को इंसर्ट करना पड़ता है ना, है, वो सारी चीज़ें करना पड़ती है। उसके बाद फिर हम लोग वो जो कवर पेज के बारे में भी सीखेंगे, कवर पेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ना, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उनमें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो आज एक एक्चुअली ये थोड़ा सा जो था ना इंट्रोडक्टिव पार्ट था, है ना, इंट्रोडक्टिव पार्ट था कि किस तरह से हम एक खाका कहते हैं ना, खाका था कि हम किस तरह से हम लोग एक बुक का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, बुक की अहमियत क्या है, बुक क्यों, मतलब बुक हमें क्यों लिखना चाहिए, है ना, बुक क्यों लिखना, बुक सिर्फ अपने लिए नहीं लिखना चाहिए। बुक का मतलब है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में जो आपकी आने वाली जनरेशन्स को बेनिफिट हो, है ना। इसीलिए तो आज जो बुक्स है, आज अगर दुनिया में, अगर वर्ल्ड में बुक्स नहीं होती, तो हम एक दूसरे कंट्री के कल्चर्स को नहीं जान पाते, एक दूसरे लोगों के बिहेवियर को नहीं जान पाते। ठीक है, और मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं होता, वो सब पहले जो लोगों ने पढ़ा उनमें अपनी थॉट्स को अपने अपनी रिसर्च को एक बुक के फॉर्म में लाए, बुक के फॉर्म में लाके आज वो बुक्स हमारे हमारे क्या हो सामने होती है ना। कोई कोई रिलीजन्स है, हर रिलीजन्स की अपनी एक बुक होती है, उनके अपने एक फंडामेंटल्स होते हैं, उनके अपने, वो रिलीजियस कैसे उस, क्योंकि वो जो बुक्स होती है हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है ना, बहुत सारे कस्टम्स बताती है, बहुत सारे आइडियाज बताती है, बहुत सारे कल्चर्स समझाती है। तो उसको सीख के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको सीखते हैं, और आपके आने वाली जनरेशन भी उन बुक्स का क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप 2025 में हैं, और आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, है ना, आपकी बुक्स अगर आपने लिखी है तो लोग आपको आपकी बुक्स को पढ़ेंगे, है ना, कॉलेज में भी पढ़ेंगे, स्कूल्स में भी पढ़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो एकेडमिशियन नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसी किताबें लिख ली। ठीक है, जैसे पवन खेड़ा है, हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं, अभी मेरे माइंड में हम अडेंडमली वो आ नहीं रहे। उन लोगों ने किताबें लिखी, बुक्स लिखी, और बुक्स लिखने के बाद वो बहुत फेमस हुए, और उन्होंने उन बुक्स का उनका लाखों लाखों रुपए का उनको रॉयल्टी मिली। ठीक है, जैसे कि आई थिंक बागवान फिल्म जो है, बागवान फिल्म सब लोगों ने देखी होगी। अमिताभ बच्चन ने लास्ट में किताब लिखते रहते। उन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जमा की, किसी पब्लिशर ने पब्लिश की, और पब्लिश करने के बाद उनकी जो बुक्स है वो क्या हो गया, बेस्ट सेलिंग बुक्स हो गई, है ना।
तो बेस्ट सेलिंग बुक्स जब हो गई वो, तो उनको उसमें अच्छा खासा रॉयल्टी, जब उसकी बुक्स कम से कम लाखों बुक्स बिकी, तो उनको अच्छा खासा अमाउंट रॉयल्टी का मिला। ठीक है, वो उनका उनका मतलब पब्लिशर्स और ऑथर के बीच में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, क्या उन लोगों में हुआ था, वो बात की बात है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बुक के फॉर्मेट को, एक बुक का खाका तैयार कर सकते हैं और बुक की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि बुक की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आज का सेशंस हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और कल हम लोग फिर से मिलेंगे, और फिर से मिलने के बाद एक नए टॉपिक पे, क्योंकि कल से जो, आज तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, कल से प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है ना, प्रैक्टिकल हम चीज़ को करेंगे, बात करेंगे। तो अब जिन लोगों का कोई क्वेश्चंस है, जो ये चाहते हैं कि उनकी कोई चीज़ समझ में नहीं चाहती, या किसी चीज़ में कोई डाउट्स है पब्लिशिंग में, तो दे कैन आस्क, है ना, तो पूछ सकते हैं। यस सर। यस। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। यस यस। वालेकुम सर मेरा सलाम। नाम कैफुल इस्लाम है। सर सवाल मेरा ये है कि जैसे टेक्स्ट बुक हम जो लिखते हैं आमतौर से, जो हम अपने सिलेबस में या बच्चों के लिए तैयार करना चाहते हैं, या इस वजह से लिखते हैं कि हम आगे को उससे कोई एपीआई का फ़ायदा उठा सकें प्रमोशन के लिए, या अपनी पब्लिसिटी या अपनी चीज़ जो हमने लिखी है क्रिएटिविटी उसमें दिखाई है तो उसको शेयर कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें सर ऐसी है टेक्स्ट बुक की, तो कंटेंट लगभग सेम ही रहता है सर। जैसे अगर हम आम तौर से कोई एक किताब जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर हम ले लें, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की किताब जो है अगर हम लिखना शुरू करते हैं और किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को टारगेट करके या किसी कॉलेज के सिलेबस को और उसको देख के, तो लगभग सबकी किताबें सेम ही रहती हैं। तो उसमें सर सेम कंटेंट ही एक तरीके का जो है वो रेप्लिकेट करता है। तो ऐसे उसमें कॉपीराइट का क्या मैटर रहता है सर, ये ज़रा जानना था। उसमें सर देखिए, एक चीज़ होती है, जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है। मतलब उसमें क्या होती है, जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी जैसे आप बता रहे हैं ना, एजुकेशन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जब हायर एजुकेशन में जाएंगे ना, तो वो जो किताब होगी बेसिकली वो बेस्ड ऑन द रिसर्च। लेकिन जब आप मतलब प्लस टू तक जाएंगे, तो वहां पर क्या होता है ना, किताबें जो बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक होती है, मोस्टली सेम होती है। जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, दूसरी दूसरे मतलब जो भी बोर्ड वाले हैं, यूपी बोर्ड वाले, वो भी वही चीज़ को दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि कॉपीराइट बेसिकली आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आप लिख रहे हैं वो क्या किसी दूसरी बुक में अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है, और जो किताब आपने लिखी है उस ऑथर ने आपके ऊपर क्लेम कर दिया, कंप्लेंट कर दी कि आपने इसको आपने मेरा कंटेंट लिया है, तो वो कॉपीराइट में आ जाएगा। और कॉपीराइट में बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपनी किताब को लिखें। वो प्लेजरिज्म टूल जो मैं पढ़ाऊंगा, तो आप ये चेक कर लें कि आपकी बुक में कोई प्लेजरिज्म तो नहीं है। अगर आपकी बुक में प्लेजरिज्म नहीं है, तो आपकी कॉपीराइट का कोई चक्कर ही नहीं है। कंटेंट मतलब कंटेंट बहुत सारे हो सकता है, लेकिन वो आपके वर्ड में है ना। तो मतलब सिमिलरिटी नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जब आप प्लेजरिज्म में चेक करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं जो मतलब हर बुक्स में मिल ही जाएंगे, है तुम है, मैम ये जैसे है। सर जैसे न्यूटन का लॉ अगर हम लिख रहे हैं तो न्यूटन का लॉ तो सेम ही रहेगा। तो आप उसमें रेफरेंस दे रहे हैं ना, जो लॉ देख रहे हैं ना, तो आप ये बता रहे हैं ना उसमें कि आपने जो कंटेंट लिया है न्यूटन का लॉ, वो आपका अपना नहीं है, बल्कि आपने रेफरेंस दिया उसका। तो जब किसी भी ठीक। चीज में आप रेफरेंस देंगे, तो वहां पर कॉपीराइट खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है। समझ रहे, ठीक। कॉपीराइट का लॉ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने आपने बता दिया। देखते हैं ना, आपने कभी देखा होगा टीवी वगैरह पे, कोई जब जी। दूसरा टीवी से मतलब लेता है, तो कहता है सौ जाने से कटसी है, कटसी भाई। तो जब आपने जी। उसको क्रेडिट दे दिया, जो बंदा है उसको क्रेडिट दे दिया, तो आपका कॉपीराइट खत्म। अब आपका वो अपना खुद का हो गया। अगर आपने रेफरेंस मतलब नहीं, प्लेजरिज्म से बचना है एक तरीके से, तो और अपनी जबान में उसे पेश करना है। बस 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 जी। अपनी जबान पे पेश करना है। और अगर आप मतलब कंटेंट वही लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो भाई उसका लॉ है न्यूटन का, आपने लॉ ले लिया। लेकिन
आपने ये रेफरेंस बता दिया कि जो जो लॉ है मैंने उस बुक से लिया है, तो आपका कोई कॉपीराइट नहीं है। भैया आपको बताना ठीक। पड़ेगा कि मैंने मतलब चोरी नहीं करी, मैं उनका नाम डिस्क्लोज कर रहा हूँ जहाँ से मैंने लिया है। ठीक है, तो मैं तो जैसे आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी। शुरुआत शुरुआत में मैन्युस्क्रिप्ट का बताया था, तो मैन्युस्क्रिप्ट में जैसे हम अपना कुछ भी लिखते हैं, तो उसको मतलब वो टेक्स्ट बुक की उसमें तो आएगा नहीं, वो ख्याल मतलब एक अपने थॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं ऑनलाइन, उसका क्या स्कोर होता है एपीआई में सर? नहीं 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 नहीं, उसका जब तक बुक नहीं पब्लिश होगी एपीआई स्कोर में उसका काम नहीं होगा। जब तक मैन्युस्क्रिप्ट भी जो है पूरी उस बुक के अंदाज में होनी चाहिए फिर। बुक होना, मतलब बुक पब्लिश होना चाहिए आपकी, मतलब ऐसे नहीं आपने लिख लिया और अपने पास रख लिया। बुक पब्लिश होना चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। अगर पब्लिश करा के फिर ऑनलाइन शेयर करें उसको फिर? ऑनलाइन शेयर करें, दो तरह की चीज़ें है ना, ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ओपन एक्सेस में रखना है ना, लोगों को आप कहते हैं कि मैं अपनी बुक को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो ओपन एक्सेस में रखिए, हर किसी को एक्सेस दीजिए अपनी बुक का। आप कहते हैं कि नहीं नहीं मेरी बुक तो बहुत एक्सक्लूसिव है और मार्केट में मैं उसको उतारना चाहता हूँ, तो मार्केटिंग कराइए, उसकी मार्केटिंग करा के बुक्स अपनी जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको कन्वे कीजिए कि भाई आप हमारी बुक्स लिखिए, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो लोग हैं, आपके जो बुक सेलर्स हैं उनसे बात कीजिए, हमारी ये बुक्स है, आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास, आपके कॉलेज के आसपास जितने भी बुक सेलर्स हैं उनसे बताइए कि भाई हमारी ये बुक्स है, और आप बच्चों को रिकमेंड कर दिया, वो बुक आपकी खरीदेंगे तो आपकी बुक मिली तो उसमें आपको इनकम भी होगी। तो तो ये ये जो यूजीसी नेट वगैरह की किताबें आती हैं और हम ये वाली जो किताबों में क्या फर्क रहेगा सर उसमें? देखिए यूजीसी जैसे टेस्ट मतलब कंपटीशन की जो किताब लिखी जाती है और कंपटीशन की किताब तो है सर, ये जो आप मतलब वैसी होती है स्टैंडर्ड बुक होती है, ये तो रिसर्च बेस्ड होती है। ठीक है, वो ठीक। कंपटीशन बेस्ड होती है, उन्होंने यहाँ से कंटेंट वहाँ से कंटेंट, वहाँ भी जो भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है ना। जैसे कि आप कोई फिजिक्स में जो भी आपके जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, हम्म। उनने वहाँ से अपने बहुत सारे रूल्स है ना, बहुत सारे लॉज वहाँ से ले लिए, उसमें दे दिए। ठीक है, उसमें उसमें भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, उसमें रेफरेंस दे सकते हैं सारे कि भाई हमने ये कंटेंट कहाँ से लिया। तो बेसिकली वो कॉम्पिटेटिव बुक्स होती हैं, उसमें कंटेंट जो होता है मतलब एक एक कम कंटेंट होता है ना, लेकिन जब जो कोई रिसर्च की बुक होती है उसमें उस टॉपिक पे वास्ट कंटेंट होता है, वो रिसर्च होती है पूरी, वो सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च होती है, और ये तो भाई उस किताब से उस किताब से इस यहाँ से वहाँ से तो उन्होंने एक कंपाइल करके एक किताब लिख दी, वो होगी यूजीसी नेट की किताब। ठीक है, तो इस तरह का ये डिफरेंस होता है, वो एकेडमिक्स बुक्स होती हैं, ये कॉम्पिटेटिव बुक्स होती हैं, फर्क ये होता है, ये थैंक होता यू सर। है। ओके, और एनीवन? तो Is एंड it, करें? sir? यस 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 कोई, यस। for example, I'm Neeraj from speaking from Kashmir. I यस think यस। last one more workshop, sir, I have attended in the past. थैंक यू थैंक यू। I'm a research scholar in communication studies. So यस यस। sometimes I feel, apart from academic, I was thinking to write some sort of novel. So could you just share your thought? क्या दोनों का अप्रोच सेम ही होता है कि अलग-अलग? नहीं 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 नहीं, नॉवेल क्या है एक्चुअली? नॉवेल इट इज़ योर इमेजिनेशन, है ना। नॉवेल का मतलब यही है, इट इज़ योर इमेजिनेशन। जो आप इमेजिनेशन जो आपके माइंड में आ रहा है, इमेजिनेशन उसमें उसमें बहुत सारी चीज़ फैक्ट भी हो सकती हैं और बहुत सारी फैक्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो नॉवेल एक ये चीज़ होती है, लेकिन जब एकेडमिक बुक की बात जब हम करते हैं, जब हम एकेडमिक बुक की बात करते हैं, दैट मीन देयर विल बी फैक्ट, है ना, वहाँ पर रिसर्च होगी, वहाँ पर फैक्ट होंगे, है ना, तभी तो वो बुक बनेगी। और लेकिन जो नॉवेल्स वगैरह होते हैं, इसमें क्या होता है, आप जो सोच रहे हैं, आपका माइंड जो सोच रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, वो एक नॉवेल की शक्ल में आता है। तो वो नॉवेल क्या होता है, कभी कभी नॉवेल होता है कि भाई ट्रू स्टोरीज पे इंस्पायर होता है, कभी कभी होता है वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, जैसे कि उमराव जान है ना, राइट। और बहुत सारे नॉवेल्स हैं, बहुत सारे नॉवेल्स हैं, क्राइम्स के नॉवेल्स हैं, है ना, प्रेमचंद की बहुत सी कहानियाँ थी, है ना। तो वो वो प्रेमचंद के अलावा बहुत सारे राइटर्स हैं, उनकी कहानियाँ हैं, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल आप नॉवेल है, कोई कोई एक पोइम लिखता है, कोई एक पोइम लिखता है, तो बहुत सारी पोइम क्या होती है, वो शायरी जो होती है, वो कविताएं जो होती है,
उसकी इमेजिनेशंस होती हैं, जो भी मतलब जो भी ऑथर्स होते हैं उसके, है ना, जो भी शायर होते हैं, जो कवि होते हैं, उनकी एक इमेजिनेशन होती है कि इमेजिन। तो अब ये क्या होता है लिटरेचर में क्या होता है ना, लिटरेचर में ना इमेजिनेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना। कि फॉर एग्जाम्पल आप कश्मीर में रहते हो, कोई कवि है या कोई शायर है, तो उसने एक इमेजिनेशन की और कश्मीर पर बहुत अच्छी एक नज़म लिख दी, एक गज़ल लिख दी, है ना, वो लिख दी, या एक 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 कविता लिख दी। तो वो कविता उसकी बहुत फेमस हो गई। लेकिन क्या होता है उन कविताओं नज्म में क्या होता है, थोड़ा इमेजिनेशन ज्यादा होता है ना। बहुत सारे लोग मतलब ऐसी हालात जो जो हालात होते हैं उसमें भी मतलब उसको भी राइट। कविता और शायरी में मतलब बयान करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली नॉवेल क्या है, एक इमेजिनेशन है ना, जो भी आपकी इमेजिनेशन है उस पर नॉवेल डिपेंड करता है। जो भी आप सोच रहे हैं ना, आप सोच सकते हैं कि यार मैं समंदर के ऊपर चल रहा हूँ, तो आपने कहा कि भी हाँ वो ऐसा था, समंदर के ऊपर चले था। जैसे कि आपने कभी अलिफ लैला का नाम सुना होगा, ये क्या है, ये कोई मतलब अगर आप दिमाग में सोचेंगे कि ये रियलिटी तो ना, ये तो अफसाने हैं। अफसाने मतलब ये तो नॉवेल हैं, है ना। तो वो जो नॉवेल होते हैं वो बेसिकली इमेजिनेशन है, उसमें आप कुछ भी सोच सकते हो और जो भी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकते हो, है ना। जैसे फिल्में होती है ना। होता है बहुत सारी फिल्में ऐसी होती है जो मतलब हॉट टॉपिक पे होती है, जो रियलिटी पे होती है, लेकिन उसको जो दिखाया जाता है, उसका जो मैनिपुलेशंस होता है, वो तो मैनिपुलेशंस तो मतलब फेक होता है ना। कोई ट्रेन में कूद रहा है, कोई इस तरह से लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। तो भाई इस तरह लड़ाई झगड़े में क्या होता है, इंसान मतलब ऐसा होता नहीं है ना पॉसिबल, लेकिन उसमें पॉसिबल कर दिया जाता है और इंसान के माइंड में सेट कर दिया जाता है और इंसान मतलब उसकी जो इमेजिनेशन है उसको रियलिटी समझने लगता है इंसान। तो नॉवेल का वही है, नॉवेल के जो इमेजिनेशन है उसको लोग क्या कर समझ लगते हैं, उसको मतलब बहुत सारे अपने करेक्टर में समझने लगते हैं, वो अपने खुद से साइकोलॉजिकली कनेक्ट करने लगते हैं ना। तो उनको वो चीज़ रियल लगती है कि वो जो भी नॉवेल लिख रहा है ना, वो मतलब जो भी सूरत हाल है ना, जो भी कंडीशंस है समाज की, उसको देख कर लिखता है। तो नॉवेल बेसिकली इमेजिनेशंस, बेस्ड ऑन इमेजिनेशंस, है ना। ये है। ओके नीरज। और एक चीज और पूछना था जी जी। सर। आई थिंक नो डाउट राइटिंग इज नॉट ए वन डे प्रोसेस। ओके। तो इफ आई हैव टू स्टार्ट माय राइटिंग जर्नी, तो आई नीड टू बी डिसिप्लिन। आई फील लाइक टाइम टेबल फिक्स करना होगा कि कुछ एक पैराग्राफ डेली लिखूं, समथिंग लाइक दैट। जी जी जी। क्योंकि उसमें भी तो जैसे मुझे मुझे खुद नहीं पता, जैसे एकेडमिक चाहे लिटरेरी की वो इन बोथ कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग। जैसे अभी मुझे खुद पता नहीं है कि इफ अभी तो मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ, तो इवन आई डोंट नो कि मेरा नीश क्या होगा। एकेडमिक इन रिसर्च इन दैट इन इन विच सब्जेक्ट वी आर डूइंग पीएचडी। मीडिया, मीडिया। कम्युनिकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो ओके। ये मतलब रिसर्च के ही कॉन्टेक्स्ट में मुझे, जैसे मुझे खुद नहीं पता कि अभी एक्सप्लोरेटरी फेज में हूँ कि हर एक स्कॉलर होता है या रिसर्चर, तो उसका एक नीश होता है कि ये पर्टिकुलर स्कॉलर का टोन ये होता है। तो मैं मे बी अभी टाइम लगेगा आई फील। तो इस पे कुछ कहें आप। नहीं, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मीडिया पे कोई काम कर रहे हो ना, तो हम्म। मीडिया पर काम कर रहे हो, तो कम्युनिकेशंस क्या मतलब कम्युनिकेशंस का आपकी थीम क्या है, मतलब कोई मेरा पॉलिटिक्स। मेरा मेनली जो कम्युनिकेशन का थीम है डेवलपमेंट है। हाँ, तो आप डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट पे कोई किताब लिख सकते हो। रूरल डेवलपमेंट पे किताब लिख सकते हो आप कोई भी, मतलब किस तरह से रूरल मतलब एरियाज में जो कम्युनिकेशंस की वजह से कितने मतलब कितने सारे मतलब जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, या कम्युनिकेशन से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना। हम्म। या कम्युनिकेशन से मतलब कम्युनिकेशंस को बेस बना के आप कुछ भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं कम्युनिकेशन, रूरल डेवलपमेंट पे लिख सकते हैं, है ना, और अर्बन डेवलपमेंट पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा आज की जो मतलब मौजूदा सिनेरियो है मीडिया का, और उस पर लिख सकते हैं कि भाई अब मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं 20 लास्ट 20 ईयर्स की मीडिया को, और 2020 के बाद की मीडिया को कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसमें किस तरह के फैक्ट्स होते हैं, लोग किस तरह से बातें करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, दूरदर्शन के ज़माने में एक न्यूज़ आती थी। तो इस तरह से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं ना मीडिया को।
ठीक है, तो कंपैरिजन स्टडी भी हो सकती है आपकी, रिसर्च भी हो सकती है आपकी, है ना, रिसर्च में और बहुत सारी चीज़ें, बस थोड़ा सा कंटेंट आपको, और आजकल मैं आगे पढ़ाऊंगा कि किस तरह से हम चैट जीपीटी, परफेक्सिलिटी और दूसरे एआई टूल्स है, उनकी मदद से किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है ना? वाह। Okay, thank you so much, sir. I think there is no any questions. See you tomorrow. Okay. Okay, sir. Everyone. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Okay. Okay. Okay.